Welcome to the online lecture of Sharad V. More English School. Okay, so in EVS 2, we have started with the 10th chapter, Baji Prabhu and the memorable battle of Gorkhin. Okay, so in this chapter, we have completed till here, page number 40. Now let's start with the new topic. Next topic, the battle of Gorkhin. Okay, so in this paragraph, we'll study about the battle of Gorkhin. Okay, what's given here? By now, the enemy was at the mouth of the pass, where a fierce battle was in progress. The Mavlas, who were adept at the use of the sling, harassed the enemy with showers of stones and boulders from the hilltops and killed many of them. The first batch of the attacking troops withdrew in confusion. Another batch took their place. Baji Prabhu urged his troops into the attack. The Maratha war cry "Har Har Mahadev" echoed through the hills, and the brave Mavlas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attacks. Through the din of battle they heard their captain shouting encouragement to them. "Bravo, my lads, go ahead. Attack me." The second batch of the enemy troops was also defeated. Okay, now what's given here? By now the enemy was at the mouth of the pass. मतलब जो बैटल चल रही थी है ना, वो टाइम पे जो एनिमीज थे, एनिमी मतलब जो अपोजिट जो दुश्मन थे, है ना, वो कहाँ थे? एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ फियर्स बैटल वाज इन प्रोग्रेस, जहाँ पर वो बैटल चल रही थी। बैटल मतलब जो जंग चल रही थी, वॉर चल रही थी, है ना। The Mavlas, who were adept at the use of sling, harassed the enemy with showers of stones and boulders. Okay, और वो क्या कर रहे थे? मावलास क्या कर रहे थे? एनिमीज को, मतलब जो दुश्मन थे, है ना, उन पर क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। शावर ऑफ स्टोन्स मतलब पत्थर क्या कर रहे थे? उन पे फेंक रहे थे, और बहुत सारे लोग उसमें से, बहुत सारे दुश्मनों को मार भी दिया था उन्होंने, बहुत सारे एनिमीज को किल किया था, मतलब मार दिया था, खत्म कर दिया था। ओके, the first batch of the attacking troops withdrew in confusion. Okay, और इस तरीके से जो फर्स्ट बैच थी वो फिनिश हो गई। अनदर बैच took their place, तो जो अनदर बैच थी, है ना, फिर वो आई। बाजी प्रभु urged his troops into the attack, और फिर बाजी प्रभु ने भी उनका जो ट्रूप्स था, मतलब जो उनका लश्कर था, है ना, जो सारे जंग के सामान और सोल्जर्स थे, वो भी लेकर आए फिर वॉर में। द मराठा वॉर क्राई, और फिर मराठा वॉर शुरू हो गई। बाय द इको द साउंड ऑफ हर हर महादेव। ओके, through the hills, echoed through the hills, and the brave Mavlas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack. और जो ग्रेट मावलास थे, जो ब्रेव थे, उन्होंने फिर मतलब देखो चिल्लाते हुए, है ना, इसका नारा लगाते हुए, हर हर महादेव का स्टेटमेंट लार्जली वो क्या कर रहे थे? रिसाइट कर रहे थे, बोल रहे थे, और फिर अपने दुश्मन एनिमीज पर अटैक कर रहे थे। Through the din of battle, they heard their captain shouting encouragement to them. और इस बीच में, in between the war, what they heard the encouragement. encouragement का मतलब किसकी हिम्मत अफजाई करना, है ना, कि वो जो उनका कैप्टन था वो उनको इनकरेज कर रहा था, आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा था, और अप्रिशिएट कर रहा था। यस, यू हैव टू गो कैरी ऑन दिस बैटल। ब्रावो, क्या वर्ड्स थे उनके? देखो, ब्रावो, ब्रावो मतलब बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत अच्छे। माई लेट्स गो अहेड, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी मतलब जाओ, आगे बढ़ो, और जो एनिमीज है उन्हें अटैक करो और डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब उन्हें खत्म कर दो, फिनिश कर दो। The second batch of the enemy troop was also defeated. अब जब फर्स्ट बैच को उन्होंने डिफीट किया था, तो सेकेंड बैच आया था उनके प्लेस पे, राइट। तो फिर इनके कंटिन्यूस ये जो बैटल चल रही थी उसमें उन्होंने फिर सेकेंड बैच को भी डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया। डिफीट का मतलब हरा दिया। ओके, नाउ Shivaji was by now almost at the foot of Vishalgarh. Vishalgarh was also besieged by the enemy. Shivaji fought through the ranks of the besieging troops and was on the last lap of his ride to safety. ओके, अब वो कहाँ पर थे उस टाइम पे? विशालगढ़ में। ओके, वहां तक पहुंच गए थे। सो वहां पर भी, विशालगढ़ में भी, इट वॉज बिसीज्ड बाय द एनिमी। बिसीज्ड मतलब एनिमीज ने वहां पर भी उन्हें घेर लिया था, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। शिवाजी फाउट थ्रू द रैंक्स of the besieging troops and was on the last lap of his ride to safety. Okay, अब वो क्या कर रहे थे? फिर वहां पर भी उनसे क्या कर रहे थे? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे, है ना। He was battling with them in the
Vishalgarh. Next paragraph, Baji the Brave. Paragraph will study about the Baji. In the meantime, the battle at the pass continued unabated. Enraged at the defeat of his first two attacks, Siddhi Masood organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. This surrounded Baji Prabhu, who fought with great courage, though one wounded and attacked from all sides. With his body covered with blood, Baji would not withdraw from the pass but continued the fight. At the time, at the same time, he urged his Mawla to attack the enemy. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew, but Baji was too fatally wounded. He was hanging onto life just to hear the sound of gunfire from Vishalgarh. Okay. अब देखो, बैटल ऑफ गोडकिन कैसे चल रही थी वो हम लोग ने समझ लिया ना इन दिस पैराग्राफ, के उन लोगों ने मावलाज ने ऑलरेडी 2 बैचेस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, और फिर भी बैटल कंटिन्यूस चल रही थी. नाउ हियर इन दिस पैराग्राफ बाजी प्रभु की जो ब्रेवरी है उसके बारे में बताया हुआ है, राइट. इस बैटल में, बैटल ऑफ गोडकिन में बाजी प्रभु का क्या वाइटल रोल था, है ना. सो उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया हुआ है. In the meantime, the battle at the pass continued unabated. तो मतलब जो बैटल थी वो चल ही रही थी वो टाइम पे, है ना. और जो फर्स्ट 2 अटैक्स थे किसकी तरफ से, सिद्दी मसूद की तरफ से, जो उन्होंने 2 बैच भेजे थे, है ना, वो दोनों बैच उन्होंने क्या किए थे, डिफीट कर दिए थे मावलाज ने. सो सिद्दी मसूद ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्पैच्ड थर्ड बैच ऑफ ट्रूप्स अगेंस्ट बाजी प्रभु एंड ब्रेव मैन. ओके, अब उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज किया वो टाइम पे उन्होंने थर्ड बैच ऑफ ट्रूप, है ना, मतलब जो सोल्जर थे उन्होंने थर्ड बैच के सोल्जर्स को फिर वापस से बैटल में उतारा के सामने, उनके एनिमीज के सामने. हु आर द एनिमीज, बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन. सो अब वो थर्ड ट्रूप्स के अगेंस्ट भी बाजी प्रभु और उनके जो मैन थे, है ना, जो मामलाज थे, उनको फाइट करना था. सो नाउ दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फाउट विद ग्रेट करेज. और उन्होंने, वो जो थर्ड ट्रूप आया, उन्होंने किसे सराउंड किया, किसे घेर लिया, सराउंडेड मतलब घेर लिया आसपास में, बाजी प्रभु को, जो क्या कर रहे थे, काफी करेज से मतलब हिम्मत से लड़ रहे थे बैटल वॉर. ओके, though wounded and attacked from all sides, with his body covered with blood, बाजी would not withdraw from the pass but continued the fight. अब देखो, वो काफी उन्हें वाउंड्स भी लगे हुए थे, मतलब उन्हें चोट लगी हुई थी, है ना, चारों तरफ से उन्हें सबने घेर लिया था, एनिमीज ने अटैक कर रहे थे उन्हें सब तरफ से, और उनकी जो बॉडी थी दैट वाज टोटली कवर्ड विद द ब्लड, मतलब उन्हें इतना वाउंड्स लगे हुए थे कि ब्लड आ रहा था उनकी पूरी बॉडी से. सो उसके बाद भी उन्होंने वो जंग, मतलब जो वॉर चल रही थी, बैटल चल रही थी गोडकिन की, उन्होंने वो विड्रू नहीं किया, उनसे कंटिन्यू किया, राइट. छोड़कर जाने की बजाय उसे कंटिन्यू किया. एट द सेम टाइम ही अर्ज हिज मावलास टू अटैक द एनिमी. और फिर जब वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे कंटिन्यूसली फाइट करके एनिमीज के अगेंस्ट, और मावलास को फिर वो उस टाइम पे इनकरेज भी कर रहे थे और उन्हें परस्यू कर रहे थे कि आपको क्या करना है, एनिमीज को अटैक करना है. ओके, disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew. और इस तरीके से फिर वो जो थर्ड ट्रूप सेंड किया हुआ था, है ना, सोल्जर्स का, सो वो भी क्या, उन्होंने भी फिर विथड्रू कर दिया, मतलब उन्होंने भी हथियार डाल दिया, है ना, वो हार मान गए, डिफीट कर दिया उन्होंने मावलाज ने थर्ड ट्रूप ऑफ एनिमीज को. बट बाजी वॉज फेटली वाउंडेड. लेकिन इस पूरे बैटल में बाजी प्रभु जो थे वो टोटली क्या हो गए थे, वाउंडेड, मतलब बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, है ना, उनकी पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था. ही वॉज हैंगिंग ऑन टू लाइफ जस्ट टू हियर द साउंड ऑफ गन फायर फ्रॉम विशालगढ़. और ऐसा लग रहा था कि मतलब बस अब वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी. लेकिन वो क्या कर रहे थे, जस्ट वेट कर रहे थे दैट गन फायर का जो विशालगढ़ से आने वाली थी, दैट वॉज इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर विक्ट्री, राइट. वो विशालगढ़ से उस गन फायर को, उनकी विक्ट्री गन फायर को सुनने के लिए क्या कर रहे थे, सिर्फ वेट कर रहे थे, अलाइव थे. ओके, इतनी ज्यादा उन्हें क्या हो गई थी, जख्म हो गए थे, चोट लगी थी, वाउंड्स आए थे. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, गोडकिन बिकम्स पवन किन. ओके, अब जो गोडकिन था, गोडकिन बिकम्स पवन किन, मतलब जो गोडकिन का बैटल था, है ना, जो गोडकिन का रीजन उन्होंने जीता था,
वो पवनकिन कैसे बना ना, लुक। एंड देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हेयर्ड फ्रॉम विशालगढ़, और फिर फाइनली विशालगढ़ से वो गन फायर की आवाज आई, है ना। महाराज हैज रीच्ड विशालगढ़, आई हैव डन माई ड्यूटी, now I can die in peace. So saying, Baji breathed his last on his historical battlefield. When Shivaji heard this news on Vishalgarh, he was greatly grieved. He exclaimed, Baji Prabhu Deshpande laid down his life on the battle in the cause of Swaraj. The Bandals gave a great battle. Okay. Now, what's mentioned here in this paragraph? And then the sound of gunfire was heard from विशालगढ़. विशालगढ़ से गनफायर की आवाज आई, जिसके लिए वो वेट कर रहे थे बाजी प्रभु। अब वो क्या उनके स्टेटमेंट्स होते हैं उस गनफायर को सुनने के बाद? लुक हियर, महाराज हैज रीच्ड विशालगढ़ के महाराज, वो गनफायर वो शिवाजी महाराज की तरफ से आने वाले थे, है ना, ताकि कब आने वाली थी? जब वो विशालगढ़ पहुंच जाते हैं, तो वो वहां पे फाइनली सेफली पहुंच गए थे विशालगढ़, और गनफायर कर दिया था उन्होंने। सो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि अब वो पहुंच गए विशालगढ़ महाराज, और मैंने मेरी ड्यूटी कंप्लीट कर दी। आई हैव डन माई ड्यूटी, मतलब जो एनिमीज थे उनके अटैक से, है ना, उनके अटैक से वो क्या करे, सर्वाइव करते रहे, है ना, उन्हें अटैक पावरफुल बैटल देते रहे। नाउ आई कैन डाई इन पीस, और अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुकून से मर सकता हूँ। आई कैन डाई इन पीस। सो सेइंग दिस, बाजी breathed his last on his historic battlefield मतलब उस जंग के मैदान में, है ना, उन्होंने अपनी लास्ट ब्रीथ ली, मतलब आखिरी सांस ली, है ना, जो उन्होंने हिस्टोरिक बैटलफील्ड, मतलब हिस्टोरिक, जो हिस्ट्री में लिखी जाने लायक थी, है ना, क्योंकि उन्होंने काफी ब्रेवली, करेजियसली उस बैटल को सरवाइव किया था। ओके, व्हेन शिवाजी हर्ड दिस न्यूज ऑन विशालगढ़, अब ये न्यूज किस तक पहुंची? शिवाजी तक पहुंची कि इस बैटल में किसकी डेथ हो गई? बाजी प्रभु की डेथ हो गई। तो वो क्या हो गए? काफी सैड हो गए। ही वॉज ग्रेटली ग्रीव, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा, और उन्होंने मतलब एक्सक्लेम, मतलब बहुत हैरानी परेशानी से बोला। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? बाजी प्रभु देश पांडे laid down his life on the battlefield in the cause of स्वराज, मतलब स्वराज के लिए, है ना, स्वराज के लिए उन्होंने उस बैटलफील्ड में, उस जंग के मैदान में बाजी प्रभु देश पांडे ने अपनी जान दे दी, है ना, उनकी डेथ हो गई उस चीज के लिए, उस पर्पस के लिए। सो द बंदल्स गेव अ ग्रेट, और बंदल्स ने भी उन्हें काफी ज्यादा टक्कर दी उस बैटलफील्ड में। ओके, इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव patriots like Baji Prabhu and the Swaraj was that Swaraj was born. Okay, और वो क्या बता रहे हैं? उनको अप्रिशिएट करते हैं बाजी प्रभु को, कि जो ब्रेव पैट्रियट्स होते हैं लाइक बाजी प्रभु। पैट्रियट्स मतलब जो अपने नेशन के लिए, है ना, अपने नेशन के लिए क्या करते हैं? अपनी जान को कुर्बान करते हैं ना। तो ऐसे पैट्रियट्स लाइक बाजी प्रभु, सिर्फ उसकी वजह से ही स्वराज क्या है? जीता है ना। देयर ब्लड मेड द गोडकिन अ प्लेस होली इन स्वराज, और उनके ब्लड से जो गोडकिन जो बैटल फील्ड था, है ना, जिसके लिए बैटल हो रही थी, वो एक होली प्लेस में कन्वर्ट हो गया। स्वराज के लिए वो क्या है? एक होली प्लेस है। सो गोडकिन बिकेम इमोर्टल इन हिस्ट्री एज पवनकिन, और फिर उसे क्या नाम दिया गया? पवनकिन का नाम दिया गया इन हिस्ट्री। नाउ इट्स नोन एज पवनकिन। We pay our repeated homage to the brave Baji Prabhu and his brave men, और वो क्या करे? मतलब वो उन्हें क्या अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं बाजी प्रभु को और उनके ब्रेव मैन को। ओके, सो हियर द चैप्टर इज एंडेड।